children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Parts of a Plant. Let's learn about parts of a plant, shoot, stem of a plant, leaf, flower, fruits and seeds, root, underground part of a plant, trunk, thick and strong stem. इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. Plants are also living things. They need air, water, minerals, sunlight and care to grow. Like us, plants also have different parts. Different parts of a plant perform different functions. Various parts of a plant work together for the growth of a plant. Plant आपके living things हैं, आपको पता है उनको water, mineral, care की ज़रूरत होती है grow करने के लिए. जैसे हमारे different parts होते हैं ऐसे ही plants के भी different parts होते हैं. तो different parts plant के different function perform करते हैं. Do you know stem is the backbone of a plant? आपको पता है stem को plant का backbone कहा जाता है. Plants move or grow towards the sun. They cannot move from one place to another. They are held firmly in one place. Plants grow करते हैं हमेशा sun की direction की तरफ. वो एक जगह से दूसरी जगह move नहीं कर सकते. Instead, they are held firmly in one place. Parts of a plant. There are different kinds of plants. Some are very big while some are very small. A plant has many parts. A plant consists of shoot system, root system. अब कुछ plants आपके बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं. प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और प्लांट की मेनली आपके दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. शूट सिस्टम. ऑब्जर्व अ प्लांट इन द गार्डन. You will see only a big part of it is above the ground. This is the trunk of the tree or the stem of the plant. आप गार्डन में जाइए, एक प्लांट को आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको जो ज़मीन से ऊपर का पार्ट होगा वो आपको नज़र आएगा. ये ट्री का ट्रंक होता है या फिर प्लांट की स्टेम. दिस इज कॉल्ड शूट. It bears branches, leaves, buds, flowers and fruits. The shoot helps the plants or tree to stand upright. It carries water and mineral salts from the roots to all other parts of the plant. जो आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आता है that is called shoot. इसमें आपके branches होती हैं, leaves होती हैं, birds, flowers और fruit. अब आपका जो shoot है वो tree को upright खड़े होने में help करता है. इसके अलावा ये water और minerals को भी carry करता है. Big trees such as banyan, neem and peepal have thick and strong stem. It is called trunk. Banana has a soft and green stem. Stem of money plant and watermelon is green, soft and weak. Such plants need a support to climb up. They are known as climbers. अब कुछ बहुत बड़े trees होते हैं, उनकी thick और strong stem होती है जिसे कि trunk कहा जाता है. इसी तरह से कुछ plants होते हैं जो कि जिनकी green या soft stem होती है. आपने मनी प्लांट तो देखा ही होगा, ये वाटरमेलन. एक्चुअल में ये क्लाइमर्स होते हैं क्योंकि इनको क्लाइम करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है. फंक्शंस ऑफ द स्टेम. द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट. इट बेयर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. द स्टेम कैरीज वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम कैरीज फूड prepared by leaves to all other parts of the body. Stems of some plants such as potato, ginger, sugarcane and arbi store food and are eaten by human beings. अब स्टेम के फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये पेड़ को सीधा खड़े होने में हेल्प करते हैं. इसके बाद इनमें से दूसरे पार्ट्स बेयर होते हैं. ये वाटर कैरी करते हैं, मिनरल कैरी करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक. और इसके अलावा स्टेम जो खाना बनाती हैं लीव्स उसको भी कैरी करता है. डू यू नो दो पोटैटो ग्रोज अंडर द सॉइल इट इज़ कंसिडर्ड एज स्टेम. आपको पता है पोटैटो होता तो ज़मीन के अंदर है बट इसे स्टेम कहा जाता है. और कुछ ऐसे प्लांट्स है देखिए जो आपको दिया हुआ है, ये सारे ही स्टेम हैं जो अपने खाना इसमें स्टोर करते हैं और उसके बाद हम इन्हें कंज्यूम करते हैं. Root system. The root system of a plant is made up of roots. This part of a plant grows under the soil. They hold the plant firmly into the ground. They absorb water and minerals for the growth of plants from the soil. Some roots store extra food. We eat the roots of such plants like carrot, radish, turnip and beetroot. अब रूट सिस्टम आपका जो है प्लांट का वो रूट से बना हुआ है और ये आपके सॉइल के अंडर होता है. इनका काम क्या होता है कि प्लांट को फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं. ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. कुछ रूट्स स्टोर कर लेती हैं एक्स्ट्रा फूड को, जैसे आपका कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्चुअल में ये रूट्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट. टैप रूट. इन सम प्लांट्स देयर इज अ मेन रूट दैट ग्रोज एट द एंड ऑफ द स्टेम. मेनी टाइनी रूट फाइबर्स कम आउट ऑफ इट. Tap roots help the plant to reach far deeper in the ground for water. अब आपकी दो तरह की रूट्स होती हैं. तो पहली आपकी टैप रूट. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एक मेन रूट होती है जो एंड में स्टेम के एंड में ग्रो करती है. इसके बाद बहुत छोटे छोटे
रूट फाइबर्स इसमें से निकलते हैं एंड ये रूट यानी जो टैप रूट होती है प्लांट को हेल्प करती है बिल्कुल डीप जाने में, जिससे ग्राउंड में उन्हें वाटर मिल सके. Fibrous root. A number of thin and bushy roots of the stem are called fibrous roots. These roots prevent the soil from being washed away. Some plants do not have main root. They have a number of thin roots. Grass, rice, onion and wheat have these roots. अब fibrous root क्या है कि इसमें बहुत पतली पतली और bushy roots होती हैं. ये roots soil erosion को प्रिवेंट करती हैं. कुछ प्लांट्स की मेन रूट्स नहीं होती हैं, इनमें छोटी छोटी रूट्स होती हैं और जैसे आपके ग्रास, राइस, अनियन इन सब की फाइब्रस रूट होती है. डू यू नो अर्टिकुलेरिया इज द ओनली प्लांट दैट हैज़ नो रूट्स. ये इकलौता ऐसा प्लांट है जिसकी कोई भी रूट्स नहीं होती हैं. Leaf. The most important part of the shoot is leaf. The leaves prepare food for the plant. Leaves are of different shapes and sizes. Most of the leaves are green in color. They are usually flat, broad and thin. The broad and flat surface of a leaf is called the leaf plate or lamina. आपको मालूम है लीफ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शूट सिस्टम का, क्योंकि लीफ जो है प्लांट्स के लिए खाना प्रिपेयर करते हैं. ज़्यादातर लीव्स आपकी ग्रीन कलर में होती है और जनरली फ्लैट ब्रॉड होती हैं. तो जो फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होता है लीफ का उसे बोलते हैं लीफ प्लेट या फिर लेमिना. देखिए आपको ये लीफ दिया हुआ है, इसका जो फ्लैट सरफेस है दैट इज कॉल्ड लीफ प्लेट या फिर लेमिना. पार्ट्स ऑफ ए लीफ. Each leaf has a tube in the middle. This is called main vein. A number of side veins branch out from the main vein. These veins carry water to the leaf. The lower surface of the leaf has many tiny holes. These are called stomata. Through stomata, leaf breathe in and breathe out. अब आपको देखिए लीफ का स्ट्रक्चर दिया गया है. सबसे पहले इसमें एक मेन वेन होती है जो बीच में से निकलती है एंड ये साइड वेन्स है आपकी, राइट. और इस लीफ के लोअर सरफेस पे आपके छोटे छोटे होल्स होते हैं जैसे स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे हेल्प करते हैं. फंक्शंस ऑफ लीफ. द लीव्स मेक फूड फॉर द whole plant. It is called the food factory of the plant. This food helps the plant to grow and survive. The main function of the leaf is to make food. Leaves have a green colored substance called chlorophyll. The leaf uses water, carbon dioxide, sunlight and green pigment chlorophyll to make food. This process is called photosynthesis. Leaves give out oxygen while preparing food. अब देखिए लीफ एक्चुअली प्लांट का फूड फैक्ट्री या इसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. इसकी लीफ में आपका एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल. तो लीफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और इसके बाद लीव्स जो है ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं. The leaves of some plants store food. We eat such leaves as part of our food. Cabbage, spinach and mint are some examples of such plants. Actually में आपके जो cabbage, spinach and mints हैं ये plants की leaves हैं जिन्हें हम consume करते हैं. Activity time. Let us understand through an activity that leaves and need. Activity time. Let us understand through an activity that leaves need sunlight to make food. Keep a potted plant in a dark room. Observe it daily. After a few days, the leaves of the plant will start yellowing and drooping. Why does it happen? This happens because the plant did not get the sunlight and unable to make food. देखिए एक एक्टिविटी करनी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि सनलाइट लीव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रख दीजिए, उसे डेली ऑब्जर्व करेंगे. कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसकी लीव्स येलोइश होना शुरू हो जाएंगी एंड वो विल्ट होना शुरू हो जाएंगे. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट को सनलाइट नहीं मिली, और सनलाइट नहीं मिली तो फिर प्लांट खाना बना ही नहीं पाए अपने लिए. Do you know, leaves take in carbon dioxide from the atmosphere and give out oxygen. Thus, oxygen is produced and released by the trees or plants. Leaves का क्या काम होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमॉस्फेयर से एंड ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं. Flowers. Many plants bear flowers. The flower is the most beautiful part of a plant. Flowers of different plants differ in size, shape and color. Some flowers are very small and some are big. They have a specific scent, fragrance. The flowers help the plants to reproduce. Flowers grow into fruits and help the plant to produce seeds. Flower आपका सबसे beautiful part होता है प्लांट का. कुछ फ्लावर्स आपके बड़े होते हैं, कुछ आपके छोटे होते हैं. मतलब फ्लावर्स डिफरेंट साइज, शेप और कलर के होते हैं. कुछ फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और एक्चुअली फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को. Flowers of some plants like cauliflowers and broccoli are edible.
अच्छा, अब जैसे कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये फ्लावर है जो कि एडिबल है, यानी कि जिन्हें हम खाते हैं। Fruits and seeds. Flowers grow into fruits. Fruits have seeds inside them. Fruits protect the seeds. We eat fruits like papaya, mango, apple, guava, lychee. Fruits like mango and lychee have single seed inside them. Fruits like apple, orange and lemon have few seeds inside them. Papaya and watermelon have many seeds. There are very few plants that have no seeds. Okay, अब देखिए फ्लावर फ्रूट में ग्रो करता है, फ्रूट में सीड्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स सीड्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक ही सीड होती है, जैसे कि आपका मैंगो, लीची। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें कुछ सीड्स होती हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपाया एंड वाटरमेलन, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें कोई भी सीड्स नहीं होते। हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स? अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. Most seeds help in producing new plants. When a seed is grown in the soil, the seed grows into new plants. The baby plant begins to grow when a seed falls on the ground and gets air, water and warmth. The process of development of a new plant from a seed is called germination. अब प्लांट सीड से कैसे ग्रो होते हैं? एक्चुअल में एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। ज़्यादातर सीड न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हो। बेबी प्लांट ग्रो करना बिगिन करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यू प्लांट डेवलप होता है एक सीड से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। डू यू नो वी ईट सीड्स ऑफ मेज, राइस, व्हीट, दीज आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। आप जैसे राइस, व्हीट, मेज खाते हैं, सारे के सारे क्या हैं? सीड्स हैं, और इन्हें एडिबल सीड्स कहा जाता है। लेट्स रिमेंबर, plants are living beings. The root and the shoot are the two main parts of a plant. The shoot has a stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Plants आपके living beings होते हैं और इसके दो सिस्टम होते हैं, root system and shoot system. Shoot में आपके stem, branches, leaves, buds, flowers और fruits होते हैं. When a large number of equal size roots grow from the base of the stem, it is called fibrous root. The roots hold the plants firmly in the soil. जब large number की रूट्स ग्रो करती हैं स्टेम के बेस से, उसे कहते हैं फाइब्रस रूट। और रूट्स का काम क्या होता है? प्लांट को फॉर्मली होल्ड करना सॉइल में। द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट व्हेन इट गेट्स इनफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। स्टेम आपकी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स बेयर करती हैं और एक सीड प्लांट में ग्रो करता है जब उसको वाटर, एयर और वार्मथ मिलती है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।